So in second module, we will learn about customer discovery and validation. Why? Because it is the most integral part of any business, that identifying the customer and validating the customer needs. Right? When we say identifying the customer, it means that identifying your correct market, whether it's a service, whether it's your product, you know, it is very important that your target audience should be validated so that once you get into the market with full-fledged capacity, then you should get the returns. Because end of the day, every business model runs for profitability, right? So in this module, we will learn about how to discover customer and how to validate it, which is very, very important for any entrepreneur, right? First of all, why it matters, as we discussed, but I'll just explain you now with couple of points that every business needs a perfect marketplace, right? And it is important that if we validate all the problems at the very first end or at the very first go, right? Early problem validation, customer feedback, data-driven decisions are the key to reducing risk, right? Why? Because see what happens that if you already find out that this is your core expertise, right? We have discussed in the first module that you find out your opportunity, your core expertise, right? And you understood that this is a business where you want to perform, this is the business where you want to invest. Everything is ready. So you have to find out a customer, right? Or the perfect marketplace. Right? You know your market. For an example, that a product which let's assume that there is a product which is a beauty product, and the market of this beauty product must be let's assume 18 to 35-year-old girl or women. So, right, this is the holistic view of it. But as per the pricing of your product, which market should be catered first? I mean, it's tier one, tier two, tier three. If your product range is more than the average cost of other products available in the market, then it should be in metro cities. If the product cost, at par, then it somewhere in tier one, tier two. But if it's below the average cost of the products, those are available, similar kind of products, those are available in the market, then you can also tap the tier three. So that's how you need to find out the customer. So it reduces market risk, as we discussed. Validating problems early prevents wasted resources on solutions. See, uh, जैसा हम पहले भी बात कर चुके हैं, आप कुछ भी ऐसा सॉल्व मत करिए जो लोगों को प्रॉब्लम लगता ही नहीं है। एंड व्हेन वी डू द वैलिडेशन ऑफ अ कस्टमर ना, तो हमको पता चल जाता है कि यार इनको ये चीज चाहिए कि नहीं चाहिए। अभी हमने एक एग्जांपल लिया ब्यूटी प्रोडक्ट का। एक ब्यूटी प्रोडक्ट है, हम एज्यूम करते हैं कि द एवरेज कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग नेल पेंट इज $500। हम एज्यूम करते हैं ऐसा। अगर आपकी नेल पेंट 1000 की है तो आप उसको मेट्रो सिटीज में बेच सकते हो, आपका कस्टमर इजीली वहां पे परचेज करेगा। अगर वो 550 या 480 के आसपास है, विच इज एट पार ऑफ एवरेज, तो आप उसको अभी वो जिस मार्केट में बिक रहा है वहां पे प्लेस कर सकते हो। लेकिन अगर वो 300, 250, 200 रुपए है, तो आप उसको ऐसी मार्केट में लेके जा सकते हो जहां पे लोग एस्पिरेशनल है, जो खरीदना चाहते हैं ब्रांड प्रोडक्ट्स, लेकिन अभी उनकी पॉकेट इतना अलाउ नहीं करती कि वो 500, 600, 700 तक चले जाएं। तो आपने उनको उनकी रेंज में 250 से 300 तक की रेंज में एक नेल पेंट दे दिया। यहाँ पे बात समझ में आती है। बट नाउ इमेजिन आप उसी प्रोडक्ट को लेकर जा रहे हो एक बिल्कुल रूरल विलेज में, जहाँ पे कि शायद अभी इलेक्ट्रिसिटी भी अच्छे से नहीं पहुंची है। डज इट मेक सेंस? नो। हो सकता है उनके पास पैसे हो, दे आर फ्रॉम फार्मिंग बैकग्राउंड, दे आर फ्रॉम एग्रीकल्चर बैकग्राउंड, हो सकता है कि उनके पास अर्निंग कैपेसिटी हो, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। लेकिन अभी उनकी प्रायोरिटीज डिफरेंट है। अभी उनकी प्रायोरिटीज में भी शायद हुआ कि पहले स्टेबल हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी आ जाए ढंग से, और हम अपने सिस्टम को सस्टेन कर ले, मतलब कुछ भी हो सकता है, राइट? सो we need to make combinations of things. Not every time money is
one factor, it is the combination of cultural thing, it's the combination of geographical thing we have discussed in the slide. So it reduces market risk, then improves product fit, right? Direct customer feedback ensures your solution aligns at actual pain points and preferences. There are ways of doing it. We said कि we have to create forms, we have to create surveys, and कुछ prototype products बना के releases to the market so that we can get the customer feedback, right? And see, you need to understand if you are selling a product, you are creating a prototype product and giving it to your decided market. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको ध्यान रखिए। ये आपको बहुत कम लोग बताएंगे। आपको ये चीज को बहुत गौर से सुनना है जो मैं कहने वाला हूँ, और इसको नोट डाउन करके रखिए। व्हाट हैपेंस दैट अगर आपने एक प्रोडक्ट बनाया विच इज, लेट्स अज्यूम अगेन, एक नेल पेंट आपने बनाया 500 रुपए का और उसको आपने मार्केट में रिलीज कर दिया प्रोटोटाइप बना के। अगर उसके 100 कंज्यूमर्स को आपने वो दिया और अगर आपको फीडबैक 10 कंज्यूमर का आ रहा है, चाहे अच्छा आ रहा है चाहे बुरा आ रहा है, यानी कि 100 में से 90 लोग फीडबैक ही नहीं दे रहे हैं, सिर्फ 10 फीडबैक दे रहे हैं ना, तो एक बार समझ के सोच के करिए कि क्या ये वाकई आपकी मार्केट है। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, फीडबैक कितने लोगों को आ रहा है। अगर आपने 100 कंज्यूमर को दिया अपना प्रोडक्ट और आपको 80 से 85 का फीडबैक आ रहा है, अच्छा आ रहा है बुरा आ रहा है, वो नेक्स्ट लेवल है। लेकिन अगर एटलीस्ट 80 to 85% पीपल आर रिवर्टिंग यू बैक ना, इट मीन्स कि आपने एटलीस्ट अपना प्रोडक्ट के लिए मार्केट तो सही चुनी है, कि वहां पे लोग कंज्यूम करके आपके साथ बात भी कर रहे हैं, तो यानी कि वो लोग कंज्यूम तो कर रहे हैं। पहली बार में तो उन्होंने कंज्यूम किया, इट मीन्स दे आर इंटरेस्टेड। नाउ based on the feedback you can take changes or you can take decisions on what changes needs to be done. अगर फीडबैक पॉजिटिव है तो बहुत बढ़िया, चलते रहिए ऐसे ही आगे बढ़िए। और अगर फीडबैक में कुछ है कि पैकेजिंग और अच्छी हो सकती है, या फिर स्पिल करता है, या फिर मेरे हाथ से एक बार नेल पेंट गिरा वो टूट गया तो आप बॉटल थोड़ी स्ट्रांग बना सकते हैं, मतलब कुछ भी हो सकता है। आप यू कैन वर्क ऑन दैट। लेकिन अगर आपको रिवर्ट ही नहीं आ रहा है ना, तो वो भी एक एक नॉक ऑन द डोर है कि भैया सही मार्केट चुनी भी है कि नहीं। So you have to be make combination of it, then build credibility. See, demonstrating deep customer understanding attracts investors and partners. Data driven decisions with trust. So see, we need to demonstrate that ये हम कहते हैं डीप कस्टमर अंडरस्टैंडिंग। सी, अगर हमारे प्रोडक्ट 100 लोग हैं, मैं इसको इसी सेंटेंस को थोड़ा सा आपके लिए ना ब्रेक डाउन करता हूँ। डेमोन्स्ट्रेटिंग डीप कस्टमर अंडरस्टैंडिंग, अभी हम इतना समझते हैं इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने 100 प्रोटोटाइप प्रोडक्ट दिए मार्केट में, उसमें से मेरे को 80-85 का रिवर्ट आया। इसका मतलब कि मेरे पास अराउंड 85% of my first batch of customers are interacting to me. I have the data of 85% people. Now, if I segregate the feedback according to their zone of interest or their zone of issues, वो हम कर सकते हैं कि 85 में से 70 ने बोला परफेक्ट है, 30 में से 10 ने बोला बॉटल स्ट्रॉन्ग कर दो, 15 ने बोला इसका ब्रश थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर दो, ऐसे करके हमने एक चार्ट बना लिया। नाउ ये हो गया डेमोन्स्ट्रेटिंग डीप कस्टमर अंडरस्टैंडिंग। ये पॉइंट समझ में आ गया। अब हम इसको आगे जाते हैं ब्रेक डाउन करने के बाद। अट्रैक्ट्स इन्वेस्टर, जब हम इसी डेटा को सही तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो इन्वेस्टर भी आप में ट्रस्ट दिखाता है। कहता है कि नहीं यार, इस बंदे ने काम किया है, मेहनत किया है, दे हैव दे नो देयर जॉब, दे नो व्हाट दे आर डूइंग, राइट? दैट्स हाउ इट वर्क्स। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स एज वेल, टू अट्रैक्ट योर पार्टनर्स एज वेल, एंड इट बिल्ड ट्रस्ट, क्रेडिबिलिटी बनती है। एंड जब आप अगला बैच लगाते हो मार्केट में और आपने उन फीडबैक्स पे काम किया होता है, तो कस्टमर की भी आपके ऊपर ट्रस्ट बनता है। तो आप अभी दोनों तरफ से पॉजिटिव में हो। आपने प्रोटोटाइप रिलीज किया, आपको फीडबैक आया, आपने उसका सही डेटा बना के इन्वेस्टर्स को भी दिखाया, और उस डेटा के हिसाब से आपने अपने प्रोडक्ट में थोड़े से चेंजेस भी किए, तो आपसे मार्केट भी खुश है, आपसे इन्वेस्टर भी खुश है। पैसा तो आना ही है ना गुरु। दैट्स that's how it works, right? And what are the key steps to do it? See, define hypothesis. When we say list assumptions about customer needs, behaviors, and willingness to pay. See, what happens that when we say assumptions, it means that we have to do a pre-market analysis.
जैसा मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था ब्यूटी प्रोडक्ट का, हम उसको स्टिक करके चलते हैं। आई होप इट्स ओके, राइट? सो यू मेड अ नेल पेंट जिसका एवरेज कॉस्ट 1000 है, आपके प्रोडक्ट का, सॉरी, कॉस्ट है 1000, एवरेज मार्केट प्राइस है 500। तो अब आपने 1000 रुपए की मार्केट के हिसाब से कुछ एजम्पशंस जो आप रिसर्च करके लिखोगे, वो क्या लिखोगे कि कस्टमर को एक ब्रांडेड प्रोडक्ट चाहिए। इंटर देखिए, 500 एक एवरेज कॉस्ट है, 1000 आपका है, और उसके बाद सीधे 3 4 5 हजार के अल्ट्रा लग्जूरियस प्रोडक्ट्स आते हैं। तो आपको लगता है कि मिड रेंज में हम कुछ लेकर आते हैं, तो आपने एक लिस्ट ऑफ ऐसे कंज्यूमर का बनाया, कस्टमर नीड का बनाया। मैं एग्जांपल आपको दे देता हूँ, जो ना 5 6 साल के एक्सपीरियंस के वर्किंग वेमेन जो हैं, जो उनकी अभी अर्निंग कैपेसिटी धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, वो एस्पिरेशनल है, वो 500 रुपए के एवरेज प्राइस वाले प्रोडक्ट से तो ऊपर जाना चाहते हैं या जा चुके हैं, लेकिन 4000 अभी भी थोड़ा सा दूर है। तो आपने उस सेगमेंट को यहाँ पे केटर कर लिया, तो यू हैव टू क्रिएट देयर कस्टमर नीड चार्ट, देयर बिहेवियर, योर देयर विलिंगनेस टू पे, है ना? कि वो शॉपिंग कब करते हैं, हर वीक करते हैं कि सैलरी आने के 2 हफ्ते बाद तक करते हैं। ऐसा होता है ना, पैसा आता है, सैलरी आती है तो मन करता है चलो कुछ खरीद के लाते हैं, है ना? आपको भी, जो स्टूडेंट्स हैं उनको पॉकेट मनी आती होगी तो मन करता होगा कि यार चलो कुछ खरीद के लाते हैं। ऐसे ही जो हम वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, होता है कि सैलरी ड्रॉप हुई है तो चलो पहले 8 10 दिन हमारे लिए वो हाईएस्ट पेनिट्रेशन का टाइम है, कि उस टाइम पे सेल हमारी पॉकेट से हम ज्यादा करेंगे मार्केट में, क्योंकि हमारे पास अभी पैसा है। ऐसी assumption, जब हम ये assumptions को थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं ना, तो हम somewhere we are there. So this is very key step to understand. Then segment audience, identify early adopters and niche market most likely to engage with your solution. Now what we call early adopters, जो मैंने आपको बोला, जो आपने प्रोटोटाइप दिया 100 लोगों को, उसमें से आपको 80 85 का रिवर्ट आया ना, तो जो 80 85 है ना, वो अर्ली अडॉप्टर्स हैं। हम ऐसा मान के चलते हैं, प्रोडक्ट अगर 100 के 100 ने कंज्यूम किया है तो वो भी आपके अर्ली ही अडॉप्टर्स हुए, लेकिन जिनका रिवर्ट भी आ गया ना, उनको हम स्ट्रिक्टली मान के चलेंगे कि वो अर्ली अडॉप्टर्स हैं, क्योंकि उन्होंने आपके प्रोडक्ट को ना सिर्फ यूज किया, उन्होंने अपना टाइम भी निकाला कि वो आपको फीडबैक दें। इट मीन्स कि वो जेन्युइनली चाहते हैं कि ऐसा प्रोडक्ट अच्छा है, ये और आए। ऐसा होता है ना, आप किसी होटल में जाते हैं या आप किसी फूड रेस्टोरेंट में जाते हैं, आपके लोकेलिटी में अच्छा एक रेस्टोरेंट खुला है, कोई कैफे खुला है, तो आप उसको फीडबैक तब दे के आते हैं यूजुअली। यूजुअली मैं कह रहा हूँ, ये एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहा हूँ। यूजुअली व्हाट हैपेंस कि अगर इफ आई विजिट टू अ नियर बाय कैफे ना, आई विल गिव द फीडबैक दैट योर कॉफी इज गुड, बट यू नो मे बी द क्वांटिटी कैन बी लिटिल बेटर, इट मे बी ऑन अ हायर साइड, और या फिर आपने ज्यादा दे दी, कम कर सकते हैं। क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे को उनका कॉफी अच्छा लग गया है, मेरे को उनका टेस्ट अच्छा लग गया है, स्टाफ अच्छा लग गया है, एम्बियंस अच्छा लग गया है, मैं दोबारा जाऊंगा तो मैं उनको फीडबैक दे सकता हूँ। अब आप ट्रैवल कर रहे हो, कहीं रास्ते में आप किसी कैफे में रुके हैं, आपको 10 मिनट के लिए रुकना, आपको फिर वहां दोबारा जाना नहीं है, जब तक वो कुछ बहुत ड्रास्टिक नहीं कर देते ना, तब तक आप फीडबैक नहीं दोगे। खुद आप अज्यूम करिए, आप कहोगे चलो ठीक है यार, पी ले चलते हैं। वाई? बिकॉज यू नो कि यहाँ पे पता नहीं और कितनी बार आना होगा। सो दिस इज द साइन ऑफ अर्ली अडॉप्टर्स, राइट? Which is very important. Design interviews, prepare open-ended question to uncover unreached. यू नो, आप अपने क्वेश्चंस को कैसे डिजाइन कर रहे हैं, सवाल क्या पूछ रहे हैं। मैंने नेल पेंट दिया, एक सवाल मैंने फीडबैक में ये पूछ सकता हूँ कि मेरा नेल पेंट की क्वालिटी कैसी है, तो वो कहेंगे अच्छी क्वालिटी है, बहुत अच्छी क्वालिटी है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, राइट? लेकिन ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो ना, जिसका आंसर most likely you will get in one word. How's the quality? Is good. It's good. Great. How's the quality? It's okay. लेकिन जब आप ये पूछेंगे कि हमने आपको नेल पेंट दिया था, वी हैव प्रेजेंटेड द नेल पेंट टू यू, व्हाट डू यू थिंक अबाउट आवर प्रोडक्ट? नाउ दिस इज वन ओपन एंडेड क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक अबाउट आवर प्रोडक्ट? सो वहां पे ना लोग अपनी तरफ से भी, तो अगर आपने सिर्फ क्वालिटी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा तो वो यस एंड नो में आंसर दे सकते हैं, बट अगर आपने उनको थोड़ा सा स्पेस दिया तो मे बी दे कैन कम आउट लिटिल बेटर। दिस इज वन एग्जाम्पल, राइट? Other things, if you'll say that how's the cap this can of the nail paint bottle, and they said ki cap is good, and if you ask that how's the packaging,
then they can come up with two, three things. That cap is good, but bottleneck its neck is small or bottle is little weak. हम चाहते हैं थोड़ी और strong हो जाए. आप इसको थोड़ी सी इसकी शेप ऐसी है कि स्लिप होता है हाथ खोलते हुए. कुछ भी एग्जांपल हो सकता है. तो जब आप सवाल करेंगे सिर्फ कैप को लेकर, यू विल गेट आंसर रिलेटेड टू कैप. बट इफ यू question about the packaging, they will give you start from the box in which your product is placed in from to the actual product usage कि ये पैकेजिंग में ये भी ठीक हो सकता है, ये भी हो सकता है, हाँ ये बहुत बढ़िया है. So you need to be careful while designing the interviews, that how you are designing the interview, right? Avoid leading questions, कि आप leading questions को avoid करिए कि आपने सिर्फ एक ही चीज पूछी फिर वो कहेंगे नहीं वो बड़े. तो क्या होता है ना कि आपके पास जो फीडबैक है ना, वो जितना ऑनेस्ट और जितना क्लियर आएगा ना आपके पास और आपकी टीम के पास, यू एंड योर टीम हैज मोर चांसेस टू grab that opportunity, grab that feedback as an area of opportunity, and provide the best of your product, best of your knowledge from the next lot. So that's why this is very important factor. Then conduct experiment is again, it's a part of the same, that use surveys, prototypes, or landing pages to test demand before. So landing pages, if you remember in the first module, we have given you an example that there is a shoe company, uh, जो Amazon bought it in 2009, 2009. So what they did that, they have what they did that they have created a landing page, right? Wherein uh, initially that whether people buying the products online or not without trying the shoes, right? So क्या होता है ना कि अगर वो हो रहा है, अगर लोग शू खरीद रहे हैं विदाउट ट्राई. अभी मैं बात कर रहा हूँ 1999 की. अभी आपको सुन के बहुत इजी लग रहा होगा कि क्या है, हम तो खरीदते हैं, लेकिन उस वक्त इट वाज वेरी न्यू फॉर ऑल ऑफ अस, है ना. लोकल शॉपकीपर्स के साथ ट्रस्ट था, पता था ब्रांड क्या, जाके ट्राई कर रहे हैं, शूलेस ट्राई करके देख रहे हैं, ठीक है ले लिया. एक पहली बार आप इंटरनेट से कुछ ले रहे हो, आपको सिर्फ पिक्चर दिख रहा है, तो लैंडिंग पेज बनाते हैं लोग. उन्होंने बनाया लैंडिंग पेज, कंपनी ने देखा कि हाँ यार बिक तो रहा है, फिर देन दे स्केल्ड अप and eventually rest is history. So that's how you need to do it. You need to conduct experiments to reach to the correct market and reach to the people and to validate them that okay, if they are doing it, they are consuming it, they are happy, then we are validating it. Perfect. Then track feedback metrics like frequency. See what happens that sometimes you make changes in the product, but there's something which is very persistent. एक लॉट गया, 2 लॉट गया, 3 लॉट गया, 4 लॉट गया, एक चीज़ की प्रॉब्लम बार-बार आ रही है, तो आप कहते हो कि नहीं यार ये ना हमने इसको सही तरीके से ट्रैक करना है कि हमने ये चेंजेस किए, पर उसके बाद भी ये वाली प्रॉब्लम जो है वो परसिस्ट है, तो इसका मतलब इसका सॉल्यूशन कुछ और निकालना पड़ेगा, राइट? सो देन इट लीड यू टू another solution, lead you to another solution, then it opens another venture, it opens other area of opportunity for you. So you need to measure it properly, right? You need to track your feedback properly, that okay. And then sometimes it happens that few things need to be done on immediate basis. You cannot wait for 4 5 lots to do that. For an instance, in the same nail paint example, if you'll see, somebody says that whenever we'll open the the cap of the bottle, it broke, and you get this feedback from 70% of people. So it needs an immediate fix. You cannot delay it to 4 to 5 lots. Why? Because this is the first thing. People buy a product, they'll open, and if it get breaks, so what's the point? What's the point? So you need to, so when you measure and you track your feedback metrics, you understand that, then it helps that what needs to be done today, what needs to be done maybe later. Something, if somebody says that your packaging color should be yellow than pink, now it is something that you can park it for later. Okay, we'll do it, but maybe sometime later, because it is not something which is, which is comes as a distraction to customer experience. No, it is not.
it is maybe like somebody like the color or not, right? So you can park it for later. But if majority of people are saying that the cap, breaks in once you open the bottle, then there is a problem that needs to be fixed early. So we need to understand and we need to track the feedback and how it should be worked, right? So as we back to the last slide, that customer discovery, how to discover your customer and how to validate them, then why it matters, right? Reduces market risk, improves product fit, build credibility. That is the most important factor. And then key steps: define hypothesis, segment audience, design interviews, conduct experiments, and measure, track feedback. Very, very, very important for all the entrepreneurs.